बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज़ आर्टिकल। इंग्लिश में एमडी कैट के हवाले से हम E3L1 लेक्चर 1 जो है वो आज स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। टॉपिक हमारा है आर्टिकल और हम इसमें डेफिनेट आर्टिकल से अपनी बात को शुरू करेंगे। यू नो डेफिनेट आर्टिकल द। हमारा टॉपिक है आज आर्टिकल से रिलेटेड मिस्टेक्स एमडी कैट के यूएचएस के पेपर पैटर्न के हवाले से, और हम डेफिनेट आर्टिकल से शुरू करें और कोशिश करेंगे कि इसको हम ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें कि आर्टिकल एक ऐसी एंटिटी है, एक ऐसा ग्रामेटिकल यूनिट है कि कब किस नाउन के साथ किस जगह पर इसको इस्तेमाल करना है और कहाँ नहीं करना, क्योंकि इससे बहुत सी एरर्स जो है वो अक्रंस होती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, मटीरियल नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, मटीरियल नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स, क्या इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल प्लेस किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो किन कंडीशंस में। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हम इनके साथ आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे जनरली। मैंने आर्टिकल द यहाँ नोट डाउन करके उसको क्रॉस भी किया है। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम इन तीनों टाइप्स ऑफ नाउन्स के साथ जो है आर्टिकल को जनरली इन जनरल सेंस यूज़ ना करें। एग्जाम्पलीफाई करते हैं। The sensibility is a great blessing. The sensibility is a great blessing. In this expression, we have an abstract noun, sensibility, because we can't touch it, we can't see it, we can't feel, we only can feel the abstract noun. Sensibility can be felt, but it is not seen, it is not a tangible thing. So that's why we have to underline it first of all to make it clear that this is an abstract noun, and in general sense, because we have used it in a general sense, the sensibility is a great blessing. So while using it generally, we have to avoid of definite article the. Here we can't use definite article with the abstract noun when it is used in general sense. So the right expression could be sensibility is a great blessing instead of the sensibility. Right expression क्या होगा? Sensibility is a great blessing. Okay. Another example please. The Malik Riaz, a renowned person. The Malik Riaz is a leading
tycoon in real estate industry. The Malik Riaz is a leading tycoon. Tycoon mean a very successful businessman. So here again we have to underline the area that is known to be a noun. Malik Riaz किसी शख्स का नेम है और इसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे. And already I have explained it here. When we use any of the three types of nouns in general sense, we have to avoid of using definite article with them. यहाँ मलिक रियाज एक प्रॉपर नाउन के तौर पर यूज़ हुआ है और आर्टिकल द again is unnecessarily placed before the proper noun. The real and right expression could be Malik Riaz is a leading tycoon, ना कि the Malik Riaz is a leading tycoon. In this way errors occurs. Now example number 3. The iron is a hard metal. The iron is a hard metal. In this expression, in this sentence, the word iron is a material noun, and it is used in general sense because this is the attribute, a characteristic of the nature or the function. I means it is a very simple feature of iron that it is hard mostly. So iron is a hard metal, it is used in general sense. That's why we have to eradicate this component of the expression article the. It is again crossed. The right expression is iron is a hard metal because it is used generally. Iron is used here in general sense. But as soon as, dear students, any one of these types of nouns, if they are linked with another noun, they are specified, they are linked to an other noun, then definitely they require definite article with them. If we say the iron is a hard metal, it could be wrong. But as soon as the iron found in South Africa, please make it clear, when I say the word iron, this is a noun, material noun, and at the same time I have used another noun, South Africa. Both the nouns are linked together, then the definite article comes before the material noun. Now, in this way, we say the iron found in South Africa is very hard, is very useful, is very important to be sold out in many countries. Same is the case with here in this example. Malik Riaz is a leading tycoon. The Malik Riaz of our era, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को हम एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन अमेरिका में देखते हैं तो हम कह सकते हैं द मलिक रियाज या द डोनाल्ड ट्रंप इज़ द मलिक रियाज ऑफ पाकिस्तान. द डोनाल्ड ट्रंप इज़ मलिक रियाज ऑफ पाकिस्तान. इसी तरह से द सेंसिबिलिटी इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग में हम कह सकते हैं द सेंसिबिलिटी, अब मैं इसको आर्टिकल को यूज़ कर रहा हूँ, द सेंसिबिलिटी ऑफ द लिटरेरी पर्सन्स, मैंने इसे अटैच किया है लिटरेरी पर्सन्स के साथ.
जो लिटरेरी फिगर्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो इंटेलिजेंसिया हैं किसी भी इलाके के, किसी भी मुल्क के, द सेंसिबिलिटी ऑफ द लिटरेरी पर्सन्स is worthy to be appreciated when we find out it in their writings. हम जब उनकी किताबें पढ़ते हैं तो हमें बाज़ राइटर्स की सेंसिबिलिटी महसूस होती है। तो इस सूरत में जब हम एक नाउन को किसी दूसरे नाउन के साथ अटैच करेंगे तो आर्टिकल लेंगे, अदरवाइज आर्टिकल से अवॉइड करेंगे। हम इससे आगे बढ़ते हैं एक और पॉइंट की तरफ। लैंग्वेजेस और रिलेशंस। लैंग्वेजेस और रिलेशंस, क्या लैंग्वेजेस के साथ और रिलेशंस के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे, कर सकते हैं? लुक एट इट। इसे एग्जांपल से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। The mother is a great blessing of Allah. The mother is a great blessing of Allah. Mother, you know, is the relation. ये एक रिलेशन है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फैमिली है। तो इसके साथ क्या आर्टिकल आ सकता है इन जनरल सेंस? हम बात करें जनरल सेंस की, जनरली क्या हम इसे यूज़ कर सकते हैं आर्टिकल के साथ? नो, हम अवॉइड करेंगे। जो रिलेशन नेम्स हैं उनके साथ आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। तो राइट एक्सप्रेशन क्या होगा? मदर इज़ द ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी, मदर इज़ द ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। लेकिन एट द सेम टाइम जब हम इसी एक रिलेशन को यूज़ करेंगे किसी और नाउन के साथ अटैच करके तो फिर आर्टिकल आ सकता है। लुक, द मदर ऑफ my friend is very loving. ओके, मदर एक नाउन है और माई फ्रेंड भी नाउन 2 है, नाउन 1 एंड नाउन 2। जब एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ में अटैच किया गया है, एसोसिएट किया गया है, लिंक किया गया है, उस सूरत में हम इस रिलेशन के साथ, इस वर्ड के साथ हम आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर पर्सन अबाउट whom it is mentioned over here. The mother of my friend is very loving. हम जनरल सेंस में बात नहीं कर रहे, हम अब पर्टिकुलर सेंस में बात कर रहे हैं। इस वक्त मैं अपने फ्रेंड की वालिदा के बारे में, उनकी करैक्टरिस्टिक के बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए उनको स्पेसिफिकली हमने पॉइंट आउट किया है। इस सूरत में डेफिनेट आर्टिकल इस रिलेशन के साथ यूज़ हो सकता है। ब्रदर, मदर, फादर, ये सारे रिलेशंस हैं, इन सब के साथ हम जनरल सेंस में आर्टिकल यूज़ नहीं करते, लेकिन पर्टिकुलर सेंस में यूज़ कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट ओके है। इसी तरह से अब हम एक और पॉइंट को देखते हैं, लैंग्वेजेस के साथ आर्टिकल क्या यूज़ करेंगे। इन जनरल सेंस हम लैंग्वेजेस के साथ आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। लुक, द उर्दू इज our national language.
The Urdu is our national language. This very word Urdu is used over here in general sense because this is the name of a language, और नेम ऑफ अ लैंग्वेज के साथ आर्टिकल नहीं लग सकता, इसलिए हम दा को यहाँ ब्लॉक करके क्रॉस करेंगे और राइट एक्सप्रेशन क्या होगा, उर्दू इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज। इस सूरत में आप याद रखें कि जब भी हम किसी लैंग्वेज के साथ आर्टिकल लगाते हैं तो वो एक और मीनिंग जो है इमर्ज करेगा। जैसे कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है तो हम वर्ड इंग्लिश के साथ आर्टिकल लगाएंगे, द इंग्लिश कहेंगे तो इट मीन्स इंग्लिश पीपल। अगर हम अरबिक के साथ द लगाएंगे, द अरबिक लैंग्वेज, तो उस सूरत में तो ठीक है कि अरबिक के बाद फ़ौरन बाद एक वर्ड आ गया लैंग्वेज। जैसे मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ जिसमें हम उर्दू के साथ भी वर्ड लैंग्वेज जो ही प्लेस करते हैं, क्योंकि वर्ड लैंग्वेज और वर्ड उर्दू दोनों डिफरेंट नाउन्स हैं। जो ही ये एक साथ में आएंगे तो आर्टिकल भी ले लेंगे। अब देखिए ज़रा, द उर्दू लैंग्वेज is very easy. The Urdu language is very easy. और यहाँ पर आप देखें इस वक्त ये एक्सप्रेशन बिल्कुल ठीक है क्योंकि हमने वर्ड उर्दू के साथ लैंग्वेज भी प्लेस किया है। जो ही आप इस वर्ड के साथ लफ्ज़ लैंग्वेज या इंग्लिश के साथ लैंग्वेज प्लेस करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, तो उस सूरत में हम इसे आर्टिकल के साथ यूज़ कर सकते हैं। द इंग्लिश लैंग्वेज इज़ क्वाइट ईजी टू बी अंडरस्टूड। द उर्दू लैंग्वेज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट समटाइम्स। सेम। और अगर हम सिर्फ इतना बोलेंगे द उर्दू या द इंग्लिश, इससे मुराद होगा वो नेशन। The Urdu mean the Urdu speakers, the English mean the English people. Okay. इससे एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। पोजीशन। पोजीशन। पोजीशन से पहले क्या डेफिनेट आर्टिकल प्लेस किया जा सकता है या नहीं? पोजीशन से पहले, जैसे कोई ओहदा है, कोई रैंक है, कोई पोजीशन है, उससे पहले क्या आर्टिकल लगाया जा सकता है? ख़ास तौर पे तब जब इलेक्ट या सिलेक्ट वर्ड यूज़ भी किए जाएं। इलेक्टेड या सिलेक्टेड, वर्ड इलेक्ट हो या सिलेक्ट, जब ये कोई ऐसी कोई इलेक्शन है उसमें कोई किसी को इलेक्शन में इलेक्ट कर लिया गया है या बहुत से लोगों में से किसी की सिलेक्शन की गई है और उसे कोई पोजीशन दी गई है, तो क्या उसके साथ आर्टिकल लग सकता है या नहीं? लुक, ही वॉज इलेक्टेड Secretary General of Supreme Court Bar. He was elected Secretary General of Supreme Court Bar. सुप्रीम कोर्ट बार में कोई इलेक्शन वगैरह जो है वो कंडक्ट किए गए जिसमें किसी शख्स को सिलेक्ट किया गया, इलेक्ट किया गया, तो सेक्रेटरी जनरल एक पोजीशन है, एक ओहदा है। और इससे पहले अगर हम आर्टिकल लगाएंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ही वॉज इलेक्टेड
द सेक्रेटरी जनरल, अगर हम यहाँ पर आर्टिकल लगा दें ही वॉज इलेक्टेड द सेक्रेटरी जनरल ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार, तो ये रॉन्ग एक्सप्रेशन हो जाएगा, क्योंकि पोजीशन के साथ हम इस तरह से कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, ये रॉन्ग एक्सप्रेशन हो जाएगा। आर्टिकल एज सुन एज एडजस्ट करने से लगाते ही ये एक्सप्रेशन रॉन्ग हो जाएगा। हम देखते हैं एक और इसकी डायमेंशन। द प्रिंसिपल of our college is very nice. The principal of our college is very nice. अभी मेरे साथ में आप इस पोर्शन को भी अपने पास में अपने नोट्स में ब्लॉक करें। अब यहाँ पर भी तो ये एक ओहदा है, द प्रिंसिपल एक पोजीशन है, लेकिन यहाँ इसके साथ हम आर्टिकल इस सूरत में लगाएंगे कि यहाँ इससे मुराद कोई पर्सन है। यहाँ इससे मुराद कोई पर्सन है हु इज़ वेरी नाइस। यहाँ पर मुराद कोई पर्सन नहीं है बल्कि एक ओहदा है जिस ओहदे पर उसकी सिलेक्शन की गई है, उसको इलेक्ट किया गया है। जब किसी को सिलेक्ट या इलेक्ट किया जाएगा किसी ख़ास पोस्ट पर, पोजीशन पर, तो उसकी पोजीशन मेंशन करने के लिए हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, लेकिन जो ही उस पोजीशन से मुराद कोई पर्सन होगा तो आर्टिकल लगेगा। जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ठीक है, इसके साथ आर्टिकल लगेगा। मैं सेंटेंस अगर बनाऊं तो ऐसे बनाया जा सकता है, द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इज़ प्लेइंग हिज नेगेटिव रोल इन स्प्रेडिंग रूमर्स। तो मैंने आर्टिकल वर्ड प्रेसिडेंट के साथ लगाया क्योंकि इससे मुराद अमेरिकन प्रेसिडेंट है, एक पर्सन है। ओके, नाउ हम एक और पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और इसके लिए हम इस वाले एरिया को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। डेफिनेट आर्टिकल की बात हो रही है तो हम बाज़ गेम्स हैं उनसे पहले भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। सम गेम्स नेम्स डोंट रिक्वायर डेफिनेट आर्टिकल बिफोर देम। जैसे द क्रिकेट is very famous all over the world. All over the world. The cricket is very famous all over the world. हमने एक गेम का नेम यूज़ किया क्रिकेट, इससे पहले आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, हम इसलिए दी को क्रॉस करेंगे। जनरली ये सेंटेंस क्या होगा, क्रिकेट इज़ वेरी फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, हॉकी इज़ वेरी फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस तरह से ये सेंटेंस ठीक होगा। हाँ, इस सूरत में हम इस वर्ड क्रिकेट के साथ आर्टिकल लगा सकते हैं अगर हम इसको किसी दूसरे नाउन के साथ अटैच करें। जैसे द क्रिकेट टीम ऑफ पाकिस्तान, द क्रिकेट टीम ऑफ ऑस्ट्रेलिया। जो ही वर्ड ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान या न्यूजीलैंड अटैच हुआ है वर्ड क्रिकेट के साथ, उस सूरत में इसके साथ आर्टिकल डेफिनेट लग जाएगा। द क्रिकेट टीम ऑफ इंडिया या द इंडियन क्रिकेट टीम, द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, द इंग्लिश क्रिकेट टीम,
उस सूरत में आर्टिकल डेफिनेट इनके साथ आएगा। अदरवाइज जनरली ये गेम का नेम है, इसके साथ जो है हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। इसी तरह से हम देखते हैं कि कुछ हेवनली बॉडीज़ हैं, हेवनली बॉडीज़ हैं, उनके साथ भी आर्टिकल हम यूज़ नहीं करेंगे, एक्सेप्ट अर्थ। हम द अर्थ यूज़ करेंगे, अर्थ के साथ हम आर्टिकल डेफिनेट लगा सकते हैं, द अर्थ, लेकिन हम अर्थ के अलावा दूसरी हेवनली बॉडीज़ के साथ, दूसरे प्लैनेट्स के साथ जो है वो हम आर्टिकल डेफिनेट यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि द Pluto is the smallest planet. The Pluto is the smallest planet. लेकिन यहाँ आर्टिकल नहीं यूज होगा। राइट एक्सप्रेशन क्या होगा? प्लूटो इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, प्लूटो इज द स्मॉलेस्ट वन। फिर इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि कुछ ऐसी इलनेसेस हैं, डिजीज़ हैं, उनके साथ भी आर्टिकल हम यूज़ नहीं करते। इलनेसेस हैं, इनके साथ भी आर्टिकल से अवॉइड करते हैं। मिसाल के तौर पर सब तमाम इलनेसेस के साथ, डिजीज़ के साथ आर्टिकल हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन कुछ एक के साथ करेंगे। जिनके साथ करेंगे उनके नाम मैं लिख देता हूँ। द फ्लू, द मम्प्स, द मीजल्स, ये कुछ एक डिजीज़ हैं, इलनेसेस हैं जिनके साथ हम आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। द फ्लू, द मम्प्स, द मीजल्स। इनके अलावा बाकी डिजीज़ और इलनेसेस के साथ हम आर्टिकल यूजुअली जनरली यूज़ नहीं करेंगे। ओके, और इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक और पॉइंट बड़ा इम्पॉर्टेंट है जिसको आपके साथ शेयर करते हैं। कंपैरेटिव पेयर्स हैं। कंपैरेटिव पेयर्स, जैसे कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, जब उसमें पेयर बनता है तो हम उसके साथ आर्टिकल यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ। सपोज द हार्डर यू वर्क the better it is. Look dear, the harder you work, the better it is. Note it down and underline the area. The harder, harder is the comparative degree, comparative degree of adjective, and here better is also comparative degree of adjective. दोनों comparative degrees हैं adjective की, hard से harder और good से better।
जब कंपैरेटिव पेयर बनता है तो फिर उन दोनों से पहले डेफिनेट आर्टिकल भी यूज़ किया जाता है। और रॉन्ग एक्सप्रेशन क्या होगा कि इनके बगैर हम ये स्टेटमेंट बनाएं, हार्डर यू वर्क इट इज़ बेटर, हार्डर यू वर्क इट इज़ बेटर। जैसे वो आप एक्सप्रेशन द हायर यू गो द कूलर इट इज़, अगर हम उसमें कहें हायर यू गो कूलर इट इज़, रॉन्ग एक्सप्रेशन होगा, तो आर्टिकल इसमें लगेगा। एक और पॉइंट इसके साथ ही शेयर करते हैं, सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ भी आर्टिकल लगता है। एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी आर्टिकल यूज़ किया जाता है। एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ, जैसे you are the best student of all. You are the best student of all. Best superlative degree और definite article the. एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इट इज़ द स्मार्टेस्ट वे, इट इज़ द स्मार्टेस्ट वे टू सक्सेस। It is the smartest way to success. The word smartest, smart, smarter and smartest is superlative degree and definite article the is used over here. और अगर इसमें error occurrence करना है तो फिर क्या होगा, it is smartest way to success, या डबल सुपरलेटिव यूज़ कर ली जाए, it is the most smartest way to success. My dear student, आज के लिए यहाँ तक हम इसे कवर करेंगे और इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे के कुछ पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।